Hello students, in the last four lectures we had seen about the introduction to DBMS, introduction to RDBMS, Dr. EF code rules, importance of ER diagram and relational DBMS, that is relational database management system, normalization. Then after we discuss about the introduction to SQL, that is a structured query language. That language we have to use inside the Oracle. See, the SQL is inside used inside the Oracle. That you have to remember. SQL commands DDL, DML, DCL, DDL, DML, DCL, and TCL commands. Four categories of different commands we have discussed, which are very important throughout the portion of the Oracle in that SQL and PLSQL. And then we discuss about the data types, because each and every data we are going to store, they are related with the types. और वो टाइप हम मेंशन करेंगे जब हम टेबल क्रिएट करेंगे तब। तो बात यहाँ अब क्या आ रही है कि टेबल क्रिएट करेंगे, तो टेबल क्रिएट करने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि भाई ये जो एसक्यूएल कमांड्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए और डेटा डिस्कस किया, तो इसका साफ मतलब है कि सेकंड यूनिट में जब हम आएंगे आज नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर क्या, इस लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर के बाद आपका ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होने जा रहा है। तो नेक्स्ट वीक से आपका ओरेकल में हम टेबल क्रिएट करना वगैरह सीखेंगे। तो पहले तो जो टेबल क्रिएट करने के लिए आपको जो कमांड्स वगैरह लिखने होंगे वो कमांड होंगे डीडीएल कमांड्स, और डीडीएल एसक्यूएल कमांड्स लिखने के लिए आपको ओरेकल एक टूल प्रोवाइड करता है जहां आप अपने एसक्यूएल कमांड्स को लिख सकते हो और एग्जीक्यूट कर सकते हो। वो टूल का नाम है एसक्यूएल स्टार प्लस। तो इसका साफ मतलब है कि ये एसक्यूएल स्टार प्लस टूल कौन प्रोवाइड करता है? ओरेकल। तो मुझे पहले तो क्या सीखना पड़ेगा? ओरेकल इंस्टॉलेशन। So in this lecture I will explain you how to install Oracle 10. I have Oracle 10 and that is supported with the Windows 10. I have operating system Windows 10 64-bit and I have copy of the Oracle 10. Oracle 10 Oracle 10G Express Edition I have, और वो कॉपी आप अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मुझसे कलेक्ट कर सकते हो जब मैं कॉलेज में अवेलेबल हूँ तब, या स्टूडेंट सॉफ्टवेयर में भी मैंने ये कॉपी रखा हुआ है। सो यू कैन बी एबल टू कलेक्ट फ्रॉम द आसिफ सर, फ्रॉम मी और फ्रॉम द स्टूडेंट सॉफ्टवेयर। ओके, ओरेकल 10G विंडोज 10 में इंस्टॉल हो जाएगा, तो मैं आपको पहले ओरेकल 10G का इंस्टॉलेशन इस लेक्चर में सिखा रहा हूँ। ओके, दैट इज नॉट द shown inside the syllabus, but without the Oracle software we can't be able to do anything, we cannot be able to go ahead. So let us begin with the installation of the Oracle database 10G Express Edition. For that I already copy inside my pen drive, so I will double click. So loading process will be started. For that you have to wait. Now see in next you can be able to see the screen is available on your, you can be able to see the screen that it will ask you the administrator that you are aware with this installation. So I will press the yes. As I will press the yes, it will show you the next screen. That will be the next wizard. You can be able to see install shield wizard. It will perform the pre to install. It's very simple installation process is there. Each and every student can be able to do very easily. So progress bar is already going on. As it will be end, it will show you the next dialog box. So wait for that. Some of the files and all these things are going to be installed. Now we have to wait. Then after the new dialog box will be displayed. Okay. Then you can be able to see Oracle Database 10G Express Edition install wizard. It will show you the welcome dialog box. You have to press the next.
Then you have to accept the license agreement. So I accept the terms license agreement and press next. Then it will ask you, it will be automatically checkboxes selected with Oracle Database 10G Express Edition. So everything is there. C drive is there. Then Oracle exe folder will be created. If it will not be there, that is a destination folder, means your Oracle is going to be installed inside the C drive. In that, the Oracle exe folder will be created where the Oracle all tools will be installed. So I will press the next. Then see here what is written, that specify database password. User is already there. By default, the user is available. You can be able to see, enter and confirm passwords for the database. So this password will be used for the both the sys and system database accounts. So it means that जैसे ही मैं Oracle 10 इंस्टॉल करूंगा तो ऑटोमेटिकली दो यूजर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे जिनके नाम होंगे एक तो सिस और दूसरा सिस्टम। मानिए आप या तो सिस या सिस्टम से लॉगिन हो सकते हो। आपको यहाँ पे क्या देना है, पासवर्ड। पासवर्ड 2 बार देना है। पहला पासवर्ड जो देते हो आप वो आपको मेंशन करना है। जनरली हम मैनेजर ही देते हैं, सो आई हैव रिटन मैनेजर and in confirm password also you have to write manager and I will press the next. So as I will press the next, it will show me the summary report and I will press the install button. So further the progress bar is going to be there, which will show you the setup status. So wait as the progress bar is going to be finished और उसके बाद नेक्स्ट जो आपके सामने डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होता है उसको हम फॉलो करेंगे। Now loading process is already going on. You can be able to see. याद रखना है आपको यूजर नेम सिलेक्ट करना है सिस्टम और पासवर्ड आपका रहेगा मैनेजर, ठीक है। ओरेकल के आगे भी बहुत सारे वर्जन्स है। अभी मेरे पास 10G है इसलिए मैं 10G विंडोज 10 में इंस्टॉल हो रहा है तो मैं अभी ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। As in this syllabus we can be able to see that it has not been mentioned properly that which Oracle installation we required. आप लैब में आओगे तब आपको Oracle सर्वर होगा, तब जब आपका लेक्चर स्टार्ट हो गया तब मैं आपकी सारी चीजें बताऊंगा कि भाई वहां पे आपको आपका यूजर अकाउंट बनाया जाएगा। Oracle का, विंडोज का तो होता ही है। Oracle का यूजर अकाउंट होगा जो आसिफ सर बनाएंगे एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और वो पासवर्ड भी देंगे और एक सर्वर का नाम होगा जिसको बोला जाता है होस्ट स्ट्रिंग, ओके। वो 3 चीज आपको डालनी पड़ेगी, यूजर नेम, पासवर्ड एंड होस्ट स्ट्रिंग। फिर आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए मैं कमांड बताऊंगा जब आपका लेक्चर फिजिकली क्लास में चालू होगा तब, ओके। तब तक हमको इससे काम चलाना होगा और फिर आपका जो भी कुछ भी टेबल बनाओगे, डेटा स्टोर करोगे, आगे जो सीखोगे आप वो सारी चीजें आपका स्टोर होगा सर्वर में, ना कि आपके पीसी के अंदर, क्योंकि आपका पीसी क्लाइंट होगा। तो आसिफ सर के सर्वर में ओरेकल स्टोर होगा तो वहां सारी इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर होगी। आपके मशीन में कुछ नहीं होगा, आपके मशीन में सिर्फ आपको एसक्यूएल स्टार प्लस ओपन करना है। अभी मैं ओरेकल क्यों इंस्टॉल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एसक्यूएल कमांड आगे जाके सीखने हैं, लिखने हैं, एग्जीक्यूट करने हैं। तो मुझे उसके लिए कौन से टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एसक्यूएल स्टार प्लस, ओके। तो एसक्यूएल स्टार प्लस टूल यूज करने के लिए मेरे पास ओरेकल इंस्टॉलेशन होना जरूरी है। इसीलिए पहले मैं आपको ओरेकल इंस्टॉलेशन के स्टेप्स दिखा रहा हूं जो आप इजीली आप अपने घर पे कर सकते हो और उसके बाद हम हमारे फर्स्ट यूनिट के नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद 2 टॉपिक के 2 वीडियो होंगे जो इसी वीक में आपको अपलोड किए जाएंगे फ्राइडे तक, और वो आपको देख लेने हैं। और सैटरडे हमारी मीटिंग होगी जिसमें हम सारी क्वेरीज को डिस्कस करेंगे गूगल मीट के द्वारा। उसके लिए आपको इंटीमेट किया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो हम देख सकते हैं यहाँ ऑलरेडी हमारा सक्सेसफुली हो गया है। अगर आपको होम पेज देखना है तो ठीक है, तो आप ये चेक मार्क रखो। मैं नहीं देखना चाहता इसलिए मैं अनचेक करता हूँ एंड फिनिश। अच्छा, ये इंस्टॉलेशन तो हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू गो ऑन द स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू में आपको दिख रहा है स्टार्ट डेटाबेस, और अगर नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ढूंढना है, आपको नीचे जाना है, ओरेकल डेटाबेस 10G एक्सप्रेशन, यहाँ पे जाना है आपको और यहाँ से आपको स्टार्ट डेटाबेस करना है, ठीक है। या तो यहाँ से या तो ऊपर से। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ स्टार्ट डेटाबेस। स्टार्ट डेटाबेस पे मैंने क्लिक किया तो ऑब्वियसली इट इज नॉट द लाइसेंस वर्जन इज विथ मी, यू कैन बी एबल टू सी।
So now I will write what you have to start your SQL plus start plus tool. So first you just write dir. तो dir लिखूंगा तो dir command is for what purpose? Directory command is there. Okay, so I will write the dir. dir लिखने के बाद आपको यहाँ देख सकते हो, मेरे पॉइंटर पे देखना, यहाँ लिखा हुआ है SQL plus .exe. मानी मुझे SQL plus टूल चालू करना है तो मैं लिखूंगा SQL plus. SQL plus लिखने के बाद अच्छा मैं फोन थोड़े बढ़ा देता हूँ इसलिए आप देख सको, 18 के मैं रख देता हूँ इसलिए आप आराम से देख सकते हो. ओके, नाउ यू कैन बी एबल टू सी, मेरा पॉइंटर देखो SQL प्लस मुझे टूल चालू करना है तो SQL प्लस exe इज देयर, सो आई विल राइट हियर SQL प्लस. और ये टूल कहाँ अवेलेबल है, सारा का सारा कहाँ स्टोर है, सी में, ओरेकल exe में, एप में, ओरेकल में, प्रोडक्ट में, 10.2.0 में, सर्वर में, बीन डायरेक्टरी. आपको ओरेकल की कौन सी डायरेक्टरी ढूंढनी है, बीन. बीन डायरेक्टरी के अंदर सारी आपकी बाइनरी फाइल्स, DLL फाइल्स, exe फाइल्स, मानी बाइनरी फाइल्स एंड ऑल फाइल्स आर अवेलेबल इनसाइड द बीन डायरेक्टरी. तो आपको वहां जाना है, मानी वो ऑटोमेटिकली आपको यही दिखाएगा. जब आप क्या करोगे, फिर से दिखा देता हूँ, स्टार्ट मेनू में जाके आपको स्टार्ट डेटाबेस ओपन करना है तो ये आएगा आपके सामने. आई विल स्टार्ट माई टूल SQL प्लस. सो इट विल आस्क मी द यूजर, सो व्हाट इज माय यूजर नेम, सिस्टम. ओके, सिस्टम लिखने के बाद आपको पासवर्ड देना है. मैंने पासवर्ड क्या सेट किया था, मैनेजर. मैनेजर में गलती नहीं होना चाहिए, दिखेगा नहीं यहाँ पे, लेकिन आपको लिखना है. एंटर आई विल प्रेस. So you can be able to see my SQL prompt is going to be shown. इसका मतलब मेरा SQL प्लस टूल चालू हो गया है. अब मैं इस स्क्रीन को क्लियर करने के लिए कमांड लिखूंगा CL clear SCR, या कमांड लिख लेना clear screen. So my screen is going to be clear. ओके, फिर कितने इसके अंदर टेबल वगैरह ऑब्जेक्ट्स बने डेटाबेस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए दूसरा कमांड select star from tab and semicolon, and when I will press enter it will show you the list of all the objects which already have been created with the Oracle installation. वापिस मैं लिखूंगा clear screen. तो यहाँ हम इस वीडियो में क्या सीखे, हाउ टू इंस्टॉल द Oracle 10G. ओके, नेक्स्ट सेशन में हम क्या सीखेंगे, SQL स्टार प्लस के बारे में सीखेंगे आगे. ओके, तो थैंक यू वेरी मच.